Yes, hello, Mr. Bakhtiar. Welcome on Europedia platform, and let's start your IC Engine Snap for your final JKPSC interview for the post of Assistant Engineer in Public Works Department. Yes, So, sir. what you studied in IC Engine? Sir, I have read about different types of IC engines classification, about Mhm. combustion in IC engines, supercharging of IC engines, emissions of IC engines, all about. अच्छा, तो आप ये बताओ कि पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस यू नीड टू हाईलाइट बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन. Yes, sir. Sir, in case of a petrol engine, the fuel is ignited with the help of a high voltage spark. While as in case of a petrol, this compression ignition engine or diesel engine, the fuel is compressed to a state of self-ignition. For these, we use spark plug and carburetor in SI engine, and in case of CI engine, we use fuel pump and injector. This in case of an SI engine, the compression ratio is very low. It is around 6 to 10. It is limited by knocking. In CI engine, the compression ratio is very high. It is around 16 to 20, and it is limited by size. Sir, SI engine works on Otto cycle, that is the constant volume heat exchanger cycle, while as CI engine works on diesel cycle, that is a अच्छा, constant but मेरे pressure. को ये बताओ, suppose you are, you want to purchase some new car, you got some selection in JKPSC, Yes, sir. and you are now working as a AE and you want to purchase some car, ठीक है? Yes, sir. Which one you will purchase and why? Petrol, diesel? Sir, it depends what I want. If I want more expensive, then I will get this. I will want this diesel car. Sir, डीजल if का I want, एफिशिएंसी ज्यादा होता है. yes, sir. ओके. सर, इसका BSFC बहुत कम आता है ना बीएसएफसी डीजल कम का. होता है डीजल के लिए. Yes, sir. It's around अच्छा. 200 grams per kilowatt hour. For SI, it is around 270 grams per kilowatt hour. Means that, sir, for producing same amount of energy, we will have to burn less diesel fuel compared to that of petrol fuel. तो अगर एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए तो एफिशिएंसी तो सबको ज्यादा चाहिए, तो एवरीबॉडी विल गो फॉर डीजल. Yes, sir. Diesel engine. नहीं, सर, एफिशिएंसी इसकी सब ऐसा ऐसा कौन पिकअप होगा जो एफिशिएंसी अच्छी नहीं चाहेगा? सर पिकअप थोड़ा पेट्रोल गाड़ियों का ज्यादा आता है. पिकअप एक्सेलरेशन पेट्रोल में ज्यादा होता है. Yes, ऐसा sir. क्यों? व्हाई पिकअप इज मोर Sir, इन? sir, it is highly volatile. The petrol we use in SI engine is highly volatile. It has got good vaporization character compared to that of diesel. तो अच्छा होमोजेनियस एयरफुल मिक्सचर बन जाता है. Yes, sir. अच्छा होमोजेनियस एयरफुल मिक्सचर बन जाता है उसकी वजह से. होमोजेनियस Yes, sir. कंबशन होता है. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए होगा तो पेट्रोल के लिए जाओगे. फाइन. टेल मी मोर पॉइंट्स. Uh, माइलेज सर डीजल की ज्यादा होती है कंपेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल. माइलेज वो Yes, sir. चलो ठीक है, Sir, आपने बीएसएफसी बता दिया. फाइन फाइन. अच्छा मेरे को आप ये बताओ. yes, sir. हाँ हाँ. Sir, for example, I want very high power. हम्म. I cannot use a petrol car because that cannot be supercharged. I have to go for diesel car. It can be easily supercharged. अच्छा, पोल्यूशन किससे ज्यादा होता है? पेट्रोल गाड़ी से ज्यादा होता है या डीजल से ज्यादा होता है? सर डीजल कार से हाइड्रोकार्बन इमिशन ज्यादा होते हैं. हाइड्रोकार्बन एमिशन. यस सर. कौन सा? इससे अनबर्न्ड सर. हाइड्रोकार्बन. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन. यस सर. ऐसा कैसे हो सकता है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, डीजल तो लेस वोलेटाइल है, पेट्रोल तो ज्यादा वोलेटाइल है. तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एमिशन तो पेट्रोल में सर ज्यादा होता है. वहां पे हम आफ्टर कंप्रेशन सर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं. हाँ. दैट इज वाई सर मिक्सिंग वहां पे होमोजीनियस नहीं, वहां पे हेटेरोजीनियस मिक्सिंग होती है. तो वहां पे लेकिन चांसेस अनबर्न्ड सर. तो नहीं मिलता. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन डीजल में कम होता है. बट सर डीजल इज लेस वोलेटाइल, तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा ना. तो इवोपरेटिव लॉसेस होंगे और
or even in diesel engine we go with some kind of supercharging or Leaner, turbocharging. leaner. Sir, we कार्बन don't use this. मोनोऑक्साइड का एमिशन भी और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एमिशन भी कम होता है डीजल में, बट ये पॉइंट Yes, तो sir. गलत है आपका. कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, बोथ एमिशंस आर मोर इन पेट्रोल. सर नॉक्स एमिशन ज्यादा होगी ना. हाँ नहीं, अभी पोल्यूशन की बात करो, पोल्यूशन नोकिंग पे बाद में आए. सर नॉक्स सर नॉक्स एमिशन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर अच्छा, supercharging, then नॉक्स एमिशन किस में ज्यादा होगा? sir it will be in diesel because if we are using supercharging. क्या होता है नॉक्स, क्या होता है? सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कब बनता है नॉक्स एमिशन, कब होता है ज्यादा? सर ये होता है सर, इसके लिए दो कंडीशन चाहिए. एक तो सिलेंडर का टेम्परेचर ज्यादा है, वी हैव टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स, एंड सेकंड इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव टू मेक द excess air, bond. excess air. So both Yes, both sir. things are there in diesel, high temperature and excess air. So Yes, NOx sir. ज्यादा In होगा. case of sir, it is in case of this when we are using a supercharger. तो NOx emission डीजल में ज्यादा होता है. सर विद सुपरचार्जर ज्यादा ही आएगा. अच्छा, आप ये बताओ कि हम कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, हाउ वी कंट्रोल ऑटोमोबाइल एयर पोल्यूशन? सर कैटालिटिक कन्वर्टर, we Okay. use this is a three-way catalytic. We also use this exhaust gas recirculation for controlling NOx. थर्मल कन्वर्टर से भी हम यूज कर सकते हैं. ओके, सर यही बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है? सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सर जो एयर फ्यूल मिक्सचर आता है ना सर, ये आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. जब ये इनटेक मैनिफोल्ड से जाता है तो इसका सब प्रेशर लॉस होता है बिकॉज ऑफ सरफेस रफनेस ऑफ द मैनिफोल्ड. द प्रेशर एट विच इट एंटर्स इनटू द इंजन सिलेंडर इज लेस देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सर इसका मतलब है थोड़ी डेंसिटी डिक्रीज होगी. जो एयर फ्यूल रेशो सिलेंडर के अंदर आना चाहिए था वो तो नहीं आएगा ना आइडियल केस में इट वाज एट 1 bar. सर व्हाट इज द actual volume flow rate divided by ideal volume flow rate, that is volumetric efficiency. चलो, अच्छा आप मेरे को ये बताओ भट्ट कि टू स्ट्रोक इंजन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? वेयर वी यूज टू स्ट्रोक इंजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय टू स्ट्रोक इंजन? Sir, in case of a two-stroke engine, one cycle is completed in 2 strokes of the cycle, 2 strokes of the piston. We have a compression stroke and an expansion stroke, in which other this suction and expansion are also, these functions are also obtained during these 2 strokes. For the same speed, the power output of a 2-stroke engine is double than that of a 4-stroke engine. So we use it in applications where we require higher power output, like रेसिंग कार, लाइक दिस शिप्स में भी हम इसका यूज करते हैं सर, टू स्ट्रोक इंजन. बाइक्स में भी हम यूज करते हैं. Okay, but you heard about Morse test? Morse test, yes sir. For what purpose we conduct that test and how we conduct? Yes sir, Morse test is used to find the brake power of a multi-cylinder engine, this friction power of a multi-cylinder engine. Sir, actually what we do in Morse test, we first run all the cylinders firing and calculate what is the brake power at the crankshaft. After that we cut off fuel supply to the cylinders one by one and calculate the corresponding brake powers at the crankshaft. Then by using the equations we will calculate the friction power. So that is it. अच्छा, बट आप मेरे को स्टर्लिंग इंजन के बारे में कुछ बता सकते हो? No sir, I have not read it. स्टर्लिंग इंजन, स्टर्लिंग साइकिल सुना आपने? Yes sir, स्टर्लिंग साइकिल सुना है. क्या कैसे ड्रॉ करते हैं? सर एक्चुअली इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ कैरनॉट साइकिल, जिसमें हम क्या करते हैं सर, जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस है ना, दे आर रिप्लेस्ड बाय दिस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस, आइसोकोरिक प्रोसेसेस, and by complete regeneration sir, its efficiency becomes equal to the efficiency of Carnot cycle.
But can you tell me the difference between turbulence and swirl? What is the difference between turbulence? Sir, turbulence is basically the random haphazard motion of the air fuel mixture. That is, we use turbulence in SI engines. Swirl is the organized air movement to obtain the combustion, to obtain the required mixing and combustion short interval of time in CI engines. Yes, sir. Hello? I told you that. बट आप मेरे को ये बताओ कि आइस जो एसआई इंजन है उसमें स्वर्ल अच्छा होना चाहिए या टर्बुलेंस अच्छा होना चाहिए? सर किसमें? एसआई इंजन में। सर इन SI engines turbulence we require turbulence there. अच्छा, एंड हाउ वी प्रोवाइड स्वर्ल इन डीजल इंजन? Sir, several can be provided through different ways. Sir, we have this induction several. Sir, in induction several, what we do, we basically vary the shape of the intake system, thereby giving the several like we master the this inlet valve by one side. Sir, in there is also one compression several. Sir, in compression several, we give different designs to the piston head to provide the several. Like we have shallow duct combustion chamber, cylindrical combustion chamber. We have a toroidal that breaks the incoming jet. It is the best decision. ठीक है, बट आई थिंक नाउ आई कैन प्रोवाइड द फीडबैक। यस सर। बट देखो थोड़ा सा डीजल इंजन वगैरह के बारे में पढ़ के जाना। सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन इरिगेशन वगैरह में बहुत यूज करते हैं उसको, वाटर लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपसे कि हाउ यू विल फाइंड आउट, लाइक सपोज देयर इज सम इंजन इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू विल चेक, हाउ यू विल टेल कि यस दैट इंजन इज ए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। सम काइंड ऑफ एडवांसमेंट्स इन आइस इंजन टेक्नोलॉजी, मे बी लाइक MPFI सिस्टम, CRDI सिस्टम, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक ही बच्चे से सारे क्वेश्चन पूछना कई बार बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। टर्बो चार्जिंग, सुपर चार्जिंग रिलेटेड थिंग्स, यस सर, तो इन चीजों से क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यूअर पूछता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक लग रहा है। थोड़ा सा स्टर्लिंग इंजन वगैरह भी पढ़ के जाना। ओके सर। स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अदर देन एयर स्टैंडर्ड साइकिल लाइक ऑटो, डीजल, ड्वेल, ये तो हम करते ही हैं, उसको भी देखते हैं। सर मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी पढ़नी है क्या? देखो आप अगर टाइम है, कवर कर रहे हो तो यू कैन स्टडी, अदरवाइज बेसिक पढ़ लो। इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट में जैसे कई बार कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, कई बार वहां से पूछ लेता है वो कि कैस्टर क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, ये टॉय इन टॉय आउट क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल, ये पढ़ लेना आप। पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मत पढ़ो, कुछ सिलेक्टिव पढ़ लो। ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि सर दिस टाइम फॉर दिस इंटरव्यू आई एक्चुअली प्रिपेयर्ड आइस इंजन पार्ट ओनली सर, आई हैव नॉट रिवाइज्ड ऑटोमोबाइल पार्ट। कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो वो नेगेटिव नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, यू कैन मेंशन 4 सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट। तो अगर समय है आपके पास, इफ यू कैन रिवाइज, इट इज गुड टू रिवाइज। अदरवाइज फोकस मेजरली ऑन 3-4 सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू। सर यस सर, मुझे यही बोलना था कि सर मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं या कुछ, फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कुछ थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ओवरऑल होना चाहिए आपका जनरल इंजीनियरिंग में। यस सर। इंजीनियरिंग में बेसिक तो आपसे फंडामेंटल कहीं से भी पूछे, जैसे पंप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स मेंशन भी ना करो, मशीनरी मेंशन भी ना करो, हो सकता है पंप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, कैविटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, बहुत बेसिक चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आइस इंजन से क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले तो स्पेसिफिक रहना है 4 सब्जेक्ट के साथ जो आपके फेवरेट है, और थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है सबका ओवरऑल। प्रोडक्शन वगैरह से क्वेश्चन बहुत चांस कम है कि पूछेंगे। कुछ मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मटेरियल साइंस को जरूर पढ़ के जाना अगर समय है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको एंटायर मैकेनिकल इंजीनियर का होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कई बार अपने आप को, ही कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द एरिया। ओके, बट what I feel, if a candidate is comfortable, ready with 4-5 subjects, 3-4 subjects उसने बहुत अच्छे से अगर किए हैं, and if he is highlighting confidently those subjects in front of the interviewer और उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है,
तो तब भी सिलेक्शन वो ले पाता है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यस ठीक सर, है, तो कॉन्फिडेंट रहना है, डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, आंसर्स समझाने के वे में करना है कि हाँ आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है, किसी को समझाना है, ठीक है, उस वे यस में सर, आंसर करना है। कुछ नहीं आएगा तो देन यू कैन मेंशन क्लियरली कि सर आई हैव नॉट रिवाइज दैट, आई हैव नॉट कवर्ड दैट सब्जेक्ट फॉर दिस टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। यस सर, तो यस सर, आपका लेवल तो अच्छा है बट रिवाइज करते रहो, ठीक है, प्रोजेक्ट स्नैप भी लगा लेना मेरे साथ, यस और सर, यस सर, फिर फुल मॉक लगाओ एक दो, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक्स, ओके बट गुड लक। यस सर, थैंक्स।